Confused what are polynomials? Then let me tell you today. Welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Madhwani. Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. Today I'm back with a new chapter and that is the polynomials chapter 2 from maths. I know polynomials थोड़ा सा complicated है समझने में, but don't worry. In just 10 to 15 minutes मैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी. Now let us start. अब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है. इंट्रोडक्शन में पहले आपको चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. Then we'll do the questions related to these concepts. Now let us see. Introduction, polynomial. First, polynomial होता क्या है? So, as you can see, px. यहाँ पे x is a variable. X is a variable and a, b is the constant. A, b, c are the constant. And what is the variable x? So x is common everywhere. So polynomial px, ax square, bx plus c. So this is the polynomial. Okay. Now degree of polynomial. जो सबसे confusing part है कि degree of polynomial क्या होता है? The highest power of any polynomial is known as degree of polynomial. The highest power of the x in the px. मतलब जितनी भी highest power है x की, किसमें? px की, px में. So that is known as degree of polynomial. For example, px is equals to 3x square plus 2x cube plus x. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे highest power किसकी है? 2x cube. मतलब x की 3 यहाँ पे है. So degree of polynomial is 3 here. Highest क्या है? 3. So 3 किसकी है? 2x cube की. So this is the degree of polynomial. अब degree of polynomial three types की होती है. Linear, quadratic, cubic. जब degree 1 होती है, when highest power is 1, then it is known as linear. But when highest power is 2, then it is known as quadratic. And when highest power is 3, then it is known as cubic. So this is the degree of polynomials. Okay. अब अपन इधर आएंगे. Let us see this part. As you can see, there are two zeros of polynomial. Polynomials के दो zeros होते हैं. That are alpha and beta. जिसको अपन alpha and beta कहते हैं. ठीक है. अब ये alpha and beta are the two zeros of polynomial. या फिर I would say solution for a polynomial. ठीक है. अब रिलेशनशिप क्या होता है इस polynomial और zeros के बीच में? When we tell sum of the zeros are always equals to minus b upon a. For example, we have polynomial ax square plus bx plus c. अपन के पास यहाँ पे polynomial क्या है? ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is a polynomial for us. ये एक example है. अब मैं कहूँ मुझे sum of zeros निकालना है. So sum of zeros are always equals to minus b upon a. Minus b upon a मैं यहाँ पे constants की बात कर रही हूँ, variables की बात नहीं कर रही हूँ. So constants की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. Alpha plus beta मतलब sum of that two zeros are always equals to minus b upon a, the constants of that of that polynomial. And product of the zeros मतलब alpha and beta अपन के पास दो zeros हैं and product of that zeros are always equals to c upon a. Okay, c upon a. So these are also constants. ठीक है. And alpha and beta are the two zeros, or I would say roots, or I would say solution. ऐसे जो px को equals to 0 बना देते हैं, that are the zeros of the polynomial. Okay. अब अगर अपन को अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, I would say अगर मुझे अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है. So how would I take? अब k x square minus अल्फा प्लस बीटा x minus अल्फा बीटा, या फिर मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया होगा या फिर मुझे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा दिया होगा. तो मैं क्या करूंगी? मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी एंड देन मुझे क्या निकल जाएगा? मुझे पॉलिनोमियल निकल जाएगा. अगेन अगर मुझे जीरोस दिए हो अल्फा एंड बीटा
या फिर मुझे सम ऑफ दैट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट जीरोस दिए हो, देन वी कैन पुट इन दिस फॉर्मूला एंड इससे अपन को पॉलिनोमियल निकल जाएगा. Okay, so these are the basic concepts which I have already explained to you guys. Now let us move to the next slide where I will be explaining you some questions related to these concepts. Now let us see the next slide and this is time for the questions. Now as you can see this question, find the sum and product of zeros. मतलब अपन को पॉलिनोमियल दिया हुआ है and we have to take out the sum and the product of the zeros. अब यहाँ पे जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, दे आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट. फॉर दैट फर्स्ट लेट अस फिगर आउट व्हाट इज a b c इन दिस पॉलिनोमियल. सो a इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है एंड वी डोंट हैव एनीथिंग, सो b इज इक्वल्स टू -2 and c is equals to -8. So this is the a b c of this polynomial. अब मैंने क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b अपॉन a. मतलब सम ऑफ टू जीरोस अल्फा एंड बीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू -b अपॉन a. सो यहाँ पे b क्या है, -2. सो अल्फा प्लस बीटा माइनस इन ब्रैकेट -2, a क्या है यहाँ पे 1, सो आंसर है 2. So sum of the zeros is 2. ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a. ठीक है, अब अपन को क्या करना है, c क्या है यहाँ पे -8 एंड a is 1. सो आंसर इज -8. सो दिस इज द प्रोडक्ट. अब आप देख सकते हो कि मैंने कैसे फॉर्मुलेस को क्या पुट किया है, बॉक्स में पुट किया है. तो इससे एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन योर शीट्स. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब वो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जब अपन को सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -1. क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एंड क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा. अपन को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है एंड व्हाट वी हैव टू टेक आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला था मैंने बताया था, k इज कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट. So this is how the formula is. ये अपन का फॉर्मूला है. अब अपन को इस फॉर्मूले के अंदर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करनी है एंड वी आर देयर विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब k क्या है, कांस्टेंट है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, 1/4 इन ब्रैकेट x. अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 1. So this is how we have to present. अब अपन ने सबको पुट कर लिया, अल्फा प्लस बीटा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा -1. अब अपन को क्या करना है, अपन को ब्रैकेट से निकालना है. सो x स्क्वायर माइनस 1/4 x प्लस -1. सो दिस इज आर पॉलिनोमियल. तो ये क्या निकल गया, पॉलिनोमियल निकल गया. सो दिस इज हाउ वी हैव टू टेक आउट द पॉलिनोमियल. पहले ये पूरा फॉर्मूला लगाया, देन वैल्यूज पुट की एंड देन वी विल बी देयर विद द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इन आवर शीट्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो. Still, if you have any doubt, then do comment on my channel and I will be solving it for sure. Thank you so much guys and do subscribe my channel on YouTube so that I can give you more such types of videos. Bye.